آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ میں مدد لینے آئے درجنوں لوگوں کو شہید کر کے شروع ہوا بے شرمی کا شو۔ امریکہ اسرائیل کی ایڈ ایجنسی بولی نہ کوئی مرا ہے نہ زخمی ہوا۔ حماس پر سیز فائر ڈیل ماننے کا پریشر، حماس اپنی شرطوں پر اڑا۔ یمن کے حوثیز نے پھر داغی اسرائیل پر میزائل، 300 اسرائیلی سیٹلمنٹس میں بجے سائرن، مچی دہشت۔ ایران کی بہت سخت وارننگ، نیوکلیئر بم کے مسئلے پر کہا ہمارے صبر کا نہ لیا جائے امتحان۔ یوکرین کا روس پر سب سے بڑا حملہ، ایئرپورٹ پر کھڑے 40 فائٹر جیٹ تباہ کرنے کی خبر۔ اور چین نے امریکہ کو دی سخت دھمکی، تو سیریا میں الشرع کے دوست ہی بن سکتے ہیں دشمن، خطرے میں کرسی۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 1 جون 2025 دن سنڈے، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ آج یہ ہوتا نہیں ہے، پھر بھی خبریں اتنی بڑی تھیں کہ مجھے لگا آپ کو بتانا چاہیے، اور اپڈیٹس آ رہی تھیں اس لیے لیٹ بھی ہوا شو، حالانکہ سنڈے کو نہیں آتا۔ خیر، دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے شروع کرتے ہیں۔ آج ساری خبریں لائیو رہیں گی تاکہ کچھ اپنے انداز میں آپ سے بات ہی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز کل ڈزنز ایٹ US بیکڈ ایڈ سائٹس ان غزہ۔ جو ہم نے آپ کو پچھلے شو میں سب سے پہلی خبر دکھائی تھی وہ یہی تھی کہ جو ایک نظام قائم کیا ہے مدد بانٹنے کا UN سے الگ امریکہ نے غزہ میں، اور جس کی سیکیورٹی اسرائیل کر رہا ہے، وہاں پر آج درجنوں لوگ مارے گئے، الجزیرہ کی خبر کہہ رہی ہے، اور لگ بھگ 31 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ رفح میں ہوا ہے، کھڑے ہوئے لوگوں پر نیٹزارم کوریڈور کے پاس گولیاں چلا دی گئیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد خبر کیا آتی ہے؟ دی جیروسلم پوسٹ، اسرائیلی اخبار، کہتا ہے کہ GHF جو غزہ ہیومینیٹیرین ایڈ والا جو وہ ہے گروپ ہے، جو آرگنائزیشن ہے جو امریکہ نے بنائی ہے غزہ میں مدد تقسیم کرنے کے لیے، غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، اس نے یہ کہا ہے کہ پروف کیا ہے کہ IDF نے کوئی گولی نہیں چلائی معصوم غزہ کے لوگوں پر، اور وہاں پر ایڈ ڈسٹریبیوشن سائٹ پر کوئی قتل و غارت نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ CNN BBC جیسے لوگ یہ خبر چھاپ رہے ہیں کہ 31 لوگ غزہ میں مارے گئے ہیں IDF کی گولی سے جو مدد لینے آئے تھے، اور یہ اسکرین شاٹ لگایا انہوں نے اپنی ہیڈ لائن کے نیچے۔ یہ ان سب کو فیک نیوز بتا رہے ہیں، CNN اور BBC کی نیوز کو، اور یہ کہتے ہیں کہ GHF نے وہ ایویڈنسز اور وہ جو ہے ویڈیوز پرووائڈ کروائیں جس سے پتہ چلتا ہے نہ وہاں کوئی مارا گیا ہے نہ زخمی ہوا ہے۔ سیکیورٹی کیمرہ فوٹیج فرام سنڈیز ایڈ ڈسٹریبیوشن سائٹ، اتوار کے دن جو یہ کہتے ہیں کہ ایڈ ڈسٹریبیوشن سائٹ پر جو سیکیورٹی فورسز کے جو سیکیورٹی کیمراز ہیں، جو ان کے ایڈ والوں کے ہیں کیمرہ اور IDF کے کیمرہ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر بہت آرام سے ساری سیویلین ایکٹیویٹی چل رہی تھی، کوئی گولی باری نہیں ہوئی، ود نو انسیڈنٹس رپورٹڈ، کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہی نہیں ہوا ہے۔ ایڈ واز ڈیلیور وداؤٹ ڈسرپشن، اور بنا کسی ڈسرپشن کے ایڈ بانٹی گئی ہے لوگوں کو۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اینڈ دا اویلیبل ایویڈنسز ڈز ناٹ سپورٹ کلیمز آف انجریز اور فیٹیلٹیز، کہ مطلب لوگوں کے زخمی اور مارے جانے کی کوئی بھی کلیم ان موجود ثبوتوں سے میل ہی نہیں کھاتے، یعنی کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ تو 31 لوگ کیا ہوا؟ 31 لوگوں نے کیا کھا لیا جو مر گئے؟ یہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور اسی خبر کو جو UN کی فلپے لزرانی، کون ہے یہ UNRWA، جن پر فلسطینی یقین کرتے ہیں لوگ، یہاں UN کو گالیاں دیتے ہیں، پتہ کچھ ہے نہیں، دھلے بھر کی جانکاری نہیں ہے کہ سارے اسکول، اسپتال یہ سب دیکھتے تھے بہت سے غزہ کے لوگ، آج بھی اپنی مدد کے لیے انہی پر اعتبار کر رہے ہیں، UNRWA پر۔ اسکول یہ لوگ چلاتے تھے، لوگوں کو 2 لفظ لکھنے آ گئے کمنٹ باکس میں، UN غدار ہے، یہ غدار ہے، وہ غدار۔ ارے تم کیا ہو یار؟ وہ ان پر یقین کر رہے ہیں، تمہیں یقین تمہارے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ فلپے لازرانی کمشنر جنرل ہے UNRWA کا۔ غزہ ایڈ ڈسٹریبیوشن ہیز بیکم اے ڈیتھ ٹریپ، یہ موت کا جال بن گیا ہے غزہ میں ایڈ ڈسٹریبیوشن۔ یہ بندہ آج لکھ رہا ہے شام کو 6:39 پر 1 جون کو کہ یہاں پر ماس کیجولٹیز، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ بھوکے پیاسے لوگوں کو کہا ہے کہ شرمسار کرتے ہوئے 10-10 میل دور بلایا گیا ہے اس جنگ جیسے حالات میں راشن لینے کے لیے، اور یہاں پر گولی سے پھر انہیں مار دیا گیا۔ جو انٹرنیشنل میڈکس، جو انٹرنیشنل ڈاکٹرز ہیں موجود گراؤنڈ پر، انہوں نے یہ جانکاری دی ہے۔ A distribution point by the Israeli-American plan was put for South and Rafah، یہاں رکھا گیا تھا رفح میں، ساؤتھ میں۔ یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں جی، نہ یہاں کوئی مرا ہے نہ یہاں کوئی زخمی ہوا ہے۔ حماس says IDF fire killed
31 near Adhab, army unaware of casualties. द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन है कि हमास कह रहा है कि आईडीएफ ने 31 लोग जो मदद लेने गए थे उन्हें एडहब के करीब मार दिया, गोली मार दी, वो मारे गए। और इनकी आर्मी कह रही है अनअवेयर को वो खुद कोट कर रहे हैं कि आईडीएफ कह रही हमें खबर नहीं है, अना माफी मालूम, इन्हें खबर नहीं है। दूसरा फेक न्यूज बता रहा है। 31 लोग कहां चले गए? सीनियर इजरायली ऑफिशियल, मैं खबर दूसरी ले रहा हूं गजा से, सीनियर इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि हमास मस्ट अंडरस्टैंड इट हैज टू एक्सेप्ट द विटकॉफ आउटलाइन। कि स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका का स्पेशल एनवॉय है, जो उसने लकीर खींच दी है या जो प्लान पेश किया है, जो उसने समझौते का ड्राफ्ट दिया है, वो मानना ही होगा, हमास को मानना ही होगा। उसे समझना चाहिए कि जीएचएफ काम करने लगी, यूएनआरडब्ल्यूए बाहर निकल चुकी है, इसराइल अपना ऑपरेशन गिदियोन ऑफ चैरियट्स या चैरियट्स ऑफ गिदियोन वो शुरू कर चुका है। अमेरिका इसराइल के साथ है। हमास समझ क्यों नहीं रहा है? खुद इसराइली ऑफिशियल कह रहा है कि उसे मानना ही होगा, आज या कल। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। ये खबर कल रह गई थी मुझसे, बड़ी अहम है। 31 मई की खबर है, सुबह रह गई थी। इसराइली फोर्सेस ने कल वेस्ट बैंक में रेड करी और उनका एक मिलिट्री व्हीकल जाकर हाजियों की बस से टकरा गया, फलस्तीनी हाजियों की बस से। और उसमें तमाम हाजी मौजूद थे, खाली नहीं थी बस। और ये जेनिन में हुआ। ये बस वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बॉर्डर पर मौजूद थी। जॉर्डन से ये लोग सऊदी अरब जाते हज के लिए। तो इस बस को टक्कर मारी गई है। ये वहां की वफा न्यूज एजेंसी करी कि जानबूझकर वो जो मिलिट्री का व्हीकल था उसके ड्राइवर ने जानबूझकर हाजियों की बस को टक्कर मारा है। ये खबर सर रह गई थी। मैं तो एविडेंस के साथ बोलता हूं, हेडलाइन के साथ, तारीख के साथ दिखा रहा हूं। जिसे शक हो, यूट्यूब पे भी किसी को शक हो तो जाकर अंदर आर्टिकल पढ़ लें। शाम की खबर है, 7:04, 1 जून। सायरन बजे हैं 300 इजरायली सेटलमेंट्स में, 300 इजरायली नाजायज इलीगल बस्तियों में, क्योंकि यमन की हुथीस की तरफ से फिर एक बार एक मिसाइल दागी गई और ये कहा गया कि हमने अपना टारगेट अचीव किया, जैसे वो हमेशा दावा करते हैं। और दूसरी तरफ हमेशा की तरह इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट भी वही दावा कर रहा है कि आईडीएफ इंटरसेप्ट्स हुथीस मिसाइल्स फ्रॉम यमन। यमन की तरफ से हुथीस की जो मिसाइल दागी गई थी आईडीएफ इजराइल पर, वो आईडीएफ ने इंटरसेप्ट कर ली है और उसे हवा में ही मार कर गिरा दिया है संडे को। द हाउथीज कंफर्म दे टारगेटेड बेन गुरियन एयरपोर्ट। ये लिखते हैं कि हाउथी ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया है आफ्टर इम्पोजिंग अ पार्शियल बैन ऑन एयर ट्रैफिक। इसराइल के एयर ट्रैफिक पर पार्शियल बैन लगाने के बाद। लेकिन आईडीएफ कह रही है कि हमने उनके मिसाइल को मार गिराया है। ईरान की खबर पर आते हैं। ईरान विल मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस इफ इट्स पेशेंस इज अब्यूज्ड। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान ये बयान दे रही है कि अगर हमारे सब्र को और ज्यादा आजमाया गया तो फिर हम बहुत माकूल जवाब देंगे और बहुत माकूल फैसला लेंगे। जवाब नहीं देंगे, फैसला लेंगे। अब वो फैसला कैसे हो सकता है? ये तब हो रहा है जब आईएईए की रिपोर्ट, जो हमने कल आपको सबसे पहले बताया, कि वो ये कह रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का माल मसाला जो है वो तैयार कर लिया है। डील के लिए एक तरीके से हमने कल ही कहा था प्रेशर है। अब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान कहते हैं, काजिम गरीबाबादी, माफ कीजिएगा, कि वो ये कहते हैं कि आईएईए के डायरेक्टर जो ये कह रहे हैं वो एलिगेशन है, कोरे इल्जामात हैं ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। हम कोई बम नहीं बना रहे हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन अगर हमारे सब्र को और ज़्यादा चेक किया गया, अगर ईरान के सब्र का गलत इस्तेमाल किया गया, तो ईरान माकूल फैसला लेगा। फैसला, अब वो फैसला क्या हो सकता है कि हाँ अब तो बनाएंगे हम बम। क्या ये हो सकता है? खैर सर, बढ़ते हैं आगे। द जेरूसलम पोस्ट की खबर हमने आपको बता दिया था। आईडीएफ ने कहा है कि हमने हुथीस की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। वो खबर इधर से उधर हो गई थी, खैर छोड़िए। हाँ, अब रूस चलते हैं। रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। तमाम जगह यही हेडलाइन है, हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ले ली है। 40 रशियन जेट्स हिट हुए हैं। ये बॉम्बर थे जो बम बरसाते थे जाकर यूक्रेन के इलाकों पर। यूक्रेन ने कहा कि अब हम उन्हें बम बरसाने वालों पर ही बम बरसाएंगे। ये तमाम एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे जैसे होते हैं। 40
रशियन जेट्स हिट हुए हैं, 400 ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं, ये बताया है रूस की तरफ से, लेकिन 40 फाइटर जेट्स का या बॉम्बर जेट्स का नुकसान हो गया है। यूक्रेन ने बहुत मैसिव हमला किया है। मैंने तस्वीरें देखी हैं और मतलब बड़ी खतरनाक तस्वीरें थी। यूक्रेन हिट्स, अनादोलू की हेडलाइन, यूक्रेन हिट्स ओवर 40 रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इन लार्ज स्केल अटैक, मीडिया ने बताया है। और अटैक्स टारगेट 4 एयरफील्ड, 4 एयरफील्ड यानी जो एयरफोर्स के एयरपोर्ट होते हैं उन पर ही हमला किया गया, 4 एयरपोर्ट पर। इसमें जो है बड़े 2 महत्वपूर्ण और बड़े अहम इलाके भी हैं। 4300 किलोमीटर जो है इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो हैं वो दूर हैं यूक्रेन के बॉर्डर से। ये यहाँ कैसे आए, ये बड़ी एक वो उसकी है। असल में ये मैंने पढ़ा है, इसकी और डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने पढ़ा इन ड्रोन्स को लकड़ी के बक्सों में छुपा कर रखा गया था। अब वो कैसे थे कि रूस इन्हें पकड़ नहीं पाया। बिल्कुल बॉर्डर के करीब ये बताया जा रहा है, जाकर वो बक्से खोले गए, मैंने वो देखे हैं वीडियो, और ये ड्रोन्स उसमें से उड़ गए। और ये वो वाले थे टाइप के जैसे डिलीवरी वाले ड्रोन्स होते हैं, उनमें एक्सप्लोजिव लगा था और गए, ये बॉम्बर्स पर गिरे हैं जाकर। भयानक तबाही मचाई गई है भाई रशिया में। चाइना ने वार्निंग दी है अमेरिका को नॉट टू प्ले विथ फायर ओवर ताइवान। ताइवान के मसले पर चाइना भड़क उठा अमेरिका पर और कहा है कि आग से मत खेलो, नॉट टू प्ले विथ फायर। क्योंकि कल असल में बीजिंग ने कहा है कि ये जो है ना, अमेरिका जो है कोल्ड वॉर वाली मेंटेलिटी जो है उसको आगे बढ़ाते हुए एक आग भड़काने की कोशिश कर रहा है। हम कहते हैं कि आग से मत खेलो। इनके डिफेंस सेक्रेटरी जो अमेरिका के हैं, पीट हेग्सेथ, उन्होंने चाइना को कल ही पूरे रीजन के लिए बड़ा खतरा बताया था। हमने ये खबर आपको दी थी। पीट हेग्सेथ ने ये कहा था कि चाइना 2026 तक ताइवान पर हमला कर देगा और वो इसके लिए ट्रेनिंग ड्रिल बाकायदा शुरू कर चुका है, अपनी आर्मी को हुक्म दे चुका है। ताइवान को कब्जाना चाहता है चाइना, और हम सबको मिलकर ताइवान ही नहीं, ताइवान को बचाने के लिए नहीं, चाइना को रोकने के लिए भी जो हमारे अलाइज हैं इस रीजन में, हम सबको तैयार होना चाहिए। यानी एक तरीके से इशारा था कि अगर चाइना से जंग लड़नी पड़े तो लड़ें। तो अब चाइना की तरफ से आ गया बयान, डोंट प्ले विथ फायर। सीरिया चलते हैं। सीरिया के लीडर, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आरटी ने अपनी हेडलाइन बनाई है कि सीरिया के लीडर जो अहमद अल-शरा हैं, अब उनकी जान को भी खतरा है, जान नहीं तो उनकी कुर्सी को तो खतरा है। और उन्हीं मिलिटेंट्स की वजह से है जिनके दम पर वो कुर्सी पर आए और बशर अल-असद को कुर्सी से उखाड़ फेंका। ये वो लोग हैं, असल में सीरिया के अंदर दूसरे मुल्क के बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो अहमद अल-शरा के साथ मिलकर बशर अल-असद की हुकूमत से लड़ रहे थे। अब बशर अल-असद के जाने के बाद अहमद अल-शरा ने कई मिलिटेंट ग्रुप्स को अपनी हुकूमत में और एसटीएस में मिलाकर उन्हें डिसॉल्व करवा के हुकूमत बना ली। कुछ मिलिटेंट ग्रुप अब भी बाहर हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात हुई अहमद अल-शरा की, तब यह मामला और बिगड़ गया, क्योंकि उसके बाद कुछ ग्रुप्स पर सख्ती करने का ऐलान किया खुद अहमद अल-शरा ने, जिनके दम पर ये आए थे, और वो हथियार भी नहीं छोड़ रहे। फिर हुआ इसमें जो है एक ग्रुप ऐसा है जिसने तो इनके खिलाफ ये फतवा निकाल दिया कि भाई ये जो हैं ये अब काफिर हो चुके हैं और इनकी हुकूमत से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इनसे बाहर निकलना होगा। यस, ये जब ट्रंप से मुलाकात हुई अल-शरा की, उसके बाद टॉप आइडियोलॉग जो हैं सलाफी जिहादिज्म के, ये लिखा है इसमें खबर में आरटी में, अबू मोहम्मद अल-मकदसी, उन्होंने फतवा निकाला उस बंदे ने सीरिया के लीडर के खिलाफ और कहा ये इन्फिडल है। अहमद अल-शरा की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ही अभी ये बयान आया था कि एक सिविल वॉर के करीब है, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में भी हो सकती है और सीरिया के टुकड़े हो सकते हैं। हाँ, अशरक अल-असद की खबर ये कहती है कि आइसिस वापस सीरिया में उभरने की कोशिश कर रहा है और उसने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। ये भी इनके लिए एक ख़तरा है। बांग्लादेश से एक आखिरी खबर। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी पार्टी, जो वहाँ की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है, उस पर से बैन हटा लिया है। लगभग 10 साल से ज़्यादा वक्त से इन पर शेख हसीना ने जो बैन लगा रखा था वो चल रहा था। अब ये फिर से मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और ये बांग्लादेश के एतबार से बहुत बड़ी खबर है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।